छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है एंड हमारे सिलेबस में छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड भी एक मेजर रोल प्ले करता है। और मैं एज्यूम करके चल रही हूँ अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले PYQs करने चाहिए, बिकॉज जो लैंड रेवेन्यू कोड है ये बहुत ही बड़ा एक्ट है एंड हमें एक क्लियर पिक्चर के लिए इसके PYQs को करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In this video, we are going to discuss the previous year question paper of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 और मैं PYQs करने वाली हूँ from 2015 to 2023 में जितने भी लैंड रेवेन्यू कोड के क्वेश्चंस आ चुके हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। और मैं कोशिश करूंगी जितने रेलेवेंट प्रोविजन हो सके मैं आपको बताऊंगी, मैं एक्सप्लेनेशन भी देते चलूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम 2015 के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following power is not vested with the appellate under section 49 clause 3 of the Chhattisgarh Land Revenue Code? The options are power to vary the order appealed against, option B power to remand the case for disposal by revenue officer subordinate to it, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पावर टू रिवर्स द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस। आपको सेक्शन 49 क्लॉज 3 अच्छे से पढ़ना है, फॉर दैट आप तब इसका आंसर दे पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? क्या एक सेटलमेंट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? क्या सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? नायब तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? या फिर पंचायत सेक्रेटरी इज नॉट द रेवेन्यू ऑफिसर? तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर हम सेक्शन नंबर 11 पढ़ने जाएं तो हमें पता चलता है जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं ही इज नॉट द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। ओके, हम सेक्शन नंबर 11 पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सेक्शन नंबर 2 के यू को भी पढ़ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो अपील शैल लाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड टू द एक्सपायरेशन ऑफ डैश डेज from the date of order to which objection is made. And the options are 60 days, 30 days, 45 days, or is it 90 days? And the correct answer to this question will be option number A, that means 60 days. No appeal shall lie under the provision of Chhattisgarh Land Revenue Code to the expiration of 60 days from the date of the order to which objection is made. Okay? इसे आप पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 47 के साथ। ओके, सेक्शन नंबर 47 में ये बात कही गई है। तो हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम 2015। अब हम 2016 के PYQs देखने वाले हैं। ओके, एंड 2016 का हमारा पहला क्वेश्चन है what is the period of limitation for filing appeal against the order of collector to the commissioner under the Chhattisgarh Land Revenue Code? And the options are 60 days, 45 days, 90 days, or is it 180 days? And इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, that is 45 days. We are talking about the appeal against the order of collector to the commissioner. Okay, तो section number 47 of the of the land revenue code क्या कहता है कि the period of limitation prescribed under section 47 of the code is 45 days from the date of order to which objection is made. Okay, ध्यान दीजिएगा, we are reading the land revenue code. Okay, हमारा next question है power to make rules for regulating the preparation, maintenance and revision of the land records under Chhattisgarh Land Revenue Code are vested in. The options are state government, collector, revenue board, or is it the high court?
we are talking about the power to make rules for the regulating the preparation, maintenance and revision of the land record. Okay, and the correct answer to this question will be option number A, that is the state government. And as per section 121 of the Land Revenue Code, it gives the power to make rules for regulating the preparation, maintenance and revision of the land records to the state government. It means you can read section 121 with regard to this question. And हमारा next question है, any person who extracts or removes minerals from the mines. Okay, कोई भी person अगर mines में से extract या remove कर रहा है minerals को without the lawful authority shall be liable to pay a minimum of how much penalty under the Chhattisgarh Land Revenue Code. The options are ₹1000 का penalty लगेगा उस person पर, ₹5000 का लगेगा, ₹25000 का लगेगा या फिर ₹10,000 का पेनल्टी लगने वाला है उस पर्सन पर who is extracting या removing the minerals from mines without lawful authority. And the correct answer to this question will be option number C, that is 25,000 rupees. और इसके लिए आप जा सकते हैं सेक्शन नंबर 247 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, which states that any person who extracts or removes the mineral from mines without the lawful authority shall be liable to pay a minimum of 25,000 rupees penalty under Chhattisgarh Land Revenue Code. All right. इसके बाद हम आ रहे हैं 2017 के PYQs डिस्कस करने. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, under the Chhattisgarh Land Revenue Code, power to propose fixation of assessment rates has been conferred upon. मतलब मूल्यांकन दरों का निर्धारण प्रस्तावित करने की शक्ति किसे दी गई है? ओके, इज इट पटवारी? पटवारी को मिलता है ये पावर, सेटलमेंट ऑफिसर के पास ये पावर है, रेवेन्यू बोर्ड के पास पावर है या फिर कलेक्टर के पास पावर है फॉर द फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट्स. ओके, and the correct answer to this question will be option number B, that is the settlement officer. अगर हम सेक्शन 77 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पढ़े तो हमें पता चलता है कि सेटलमेंट ऑफिसर हैज द पावर टू प्रपोज फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code as amended in 2011 shall be levied a penalty not exceeding a sum of. कितने रुपीस तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी किसी भी पर्सन को who is found guilty of theft under section 241 of this act, this code. Okay, the options are 5,000 रुपीस तक का फाइन, 10,000 रुपीस तक का फाइन, 15,000 रुपीस तक का फाइन या फिर 25,000 रुपीस तक का फाइन. एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25,000 रुपीस तक का फाइन. और इसके लिए आप सेक्शन 241 के क्लॉज 4 को रेफर कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 से स्टार्ट होता है. ओके, दैट मीन्स 2019 के PYQs यहां से शुरू हो गए. हम बात कर रहे हैं कल्टीवेट पर्सनली मीन्स अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड. कल्टीवेट पर्सनली का क्या मतलब होता है? बाय वंस ओन लेबर, बाय इंडस्ट्रियल लेबर, टेक्नीशियन या नन ऑफ दीज. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बाय वंस ओन लेबर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन a witness fails to comply with the summon, तो dash may be issued under the छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड. अगर कोई भी विटनेस फेल कर जाता है टू कंप्लाई विद द समन तो क्या हो सकता है? क्या ये बेलेबल एंड अरेस्ट वारंट इशू करा जा सकता है? टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस हो सकता है? क्या हम फाइन नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज तक कर सकते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव? We are talking about when a witness fails to comply with the summon. Okay? And इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. और इसके लिए आप सेक्शन 34 को रेफर कर सकते हैं.
मैं सेक्शंस यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ बिकॉज PYQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो PYQs के अगर सेक्शंस आप अच्छे से पढ़कर जा रहे हैं तो हो सकता है कल को नए क्वेश्चंस बन जाए विद द सेम सेक्शन, बिकॉज PYQs रिपीट होते हैं। हमने अभी अभी रेंट कंट्रोल एक्ट जब पढ़ा था उसमें भी हमने देखा कि कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू रेफर दी सेक्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assessment of land revenue on any land shall be made with reference to the use of land. Assessment of land revenue की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या ये एजुकेशन पर्पस के लिए हो सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो सकता है, कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर हम असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू करते हैं किसी भी लैंड का विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ लैंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। और इसके लिए यू हैव टू रीड सेक्शन 59 ऑफ द लैंड रेवेन्यू कोड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 118 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। एंड द ऑप्शंस आर obligation to furnish information as to title, option B presumption as to entries in the land records, option number C dispute regarding entry in खसरा or any other land record, या फिर none of the above। क्वेश्चन नंबर 12 दैट मीन्स सेक्शन 118 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स जो सेक्शन 118 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, इट इज रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज टू द टाइटल, ओके। प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज इन द लैंड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा सेक्शन 117 हो जाएगा। एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एंट्री इन खसरा और इन एनी अदर लैंड रिकॉर्ड अगर हम करते हैं तो हमारा सही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 116 टॉक्स अबाउट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एंट्री इन खसरा, ओके। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये सेक्शन 118 के रिगार्डिंग बात करता है। प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 117 में ये बात कही गई है। एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग खसरा, एंट्री इन खसरा और एनी अदर लैंड रिकॉर्ड, तो वी हैव टू सी सेक्शन 116 विद regard to this, okay। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर दी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड डिफाइन गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स। दी ऑप्शंस आर 250, सेक्शन 249, सेक्शन 247 और इज इट सेक्शन 248। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 247 टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल, ओके। गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल के बारे में हम सेक्शन 247 में देखते हैं। 250 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 250 टॉक्स अबाउट द रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूस्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड। 249 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ फिशिंग, हंटिंग एटसेट्रा। 247 अभी मैंने बताया इट टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट्स टाइटल टू मिनरल्स। एंड 248 टॉक्स अबाउट द पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्डली टेकिंग पोजेशन ऑफ द लैंड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर 5 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू। चैप्टर 5 किससे रिलेट करता है? इज इट रिलेटेड टू अपील, इज इट रिलेटेड टू रिविजन, इज इट रिलेटेड टू रिव्यू, या is it related to all of the above? We are talking about chapter 5 and हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above। चैप्टर 5 में हम अपील, रिविजन, रिव्यू तीनों के प्रोविजंस को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 2020 के PYQs पर और हमारा पहला क्वेश्चन है Which section of the छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड deals with the appointment of कोतवार? कोतवारों से रिलेटेड कौन से सेक्शन में बात करी गई है? इज इट सेक्शन 225, इज इट सेक्शन 229, इज इट सेक्शन 230 और इज इट सेक्शन 234 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 230 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कोतवार, ओके।
सेक्शन 225 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज इम्पोज्ड अंडर एनी लॉ अपॉन लैंड होल्डर्स डीम्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन पटेल्स। सेक्शन 229 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द इंट्रस्टमेंट ऑफ विलेज मैनेजमेंट एंड सेक्शन 234 टॉक्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ निस्तार पत्रक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 who is not a revenue officer? इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? सी, ये क्वेश्चन एक और बार आ चुका है। ओके, दिस मीन्स इट इज द क्वेश्चन which has been repeated. Okay, we have options कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स या फिर रेवेन्यू ऑफिसर। इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? ओके, and the correct answer to this question will be option number D, that is revenue inspector. अगर आपको पुराना क्वेश्चन याद हो तो ये तीनों ऑप्शंस सेम थे उसमें भी, एंड डी ऑप्शन हमारा कुछ और दिया हुआ था, दैट वाज द करेक्ट आंसर देयर। और यहाँ पर भी वही तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड फोर्थ ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, इसीलिए आपको PYQs ध्यान से देखने की जरूरत है। और इसके लिए आप सेक्शन नंबर 11 देख लीजिएगा विच इज टॉकिंग अबाउट द land revenue officer. Okay, next question is agriculture year as defined in section 2C of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 commences. एग्रीकल्चर ईयर की हम बात करें तो एज पर 2C ये कब से शुरू होता है? क्या ये 1 जनवरी से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है या फिर 1 सितंबर से शुरू होता है? तो अगर हम एग्रीकल्चर ईयर की बात करें ऑफ छत्तीसगढ़ तो ये शुरू होता है 1 जुलाई से। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 2C में ये बात कही गई है दैट एग्रीकल्चर ईयर मीन्स द ईयर commencing on the 1st day of July or such other day as the state government by notification appoint. All right. The next question is which one of the following sections of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 provides for the remission or suspension of the land revenue on failure of crops? Which of the following sections provide the remission? Okay, या फिर suspension? The options are section 142, section 143, section 144, or is it section 145? And the correct answer to this question will be option number C, that is section 144 provides for the remission or suspension of the land revenue on failure of crops. सेक्शन 142 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द पटेल, पटवारी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत हु इज बाउंड टू गिव रिसीट। 143 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट द सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू अरियर एंड डिफॉल्टर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 who shall make the assessment of the land revenue on all lands on which the assessment has not been made? The options are Tehsildar, okay. Option B, subdivisional officer. Option C, collector, or is it option D, commissioner? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर। अगर आप सेक्शन 60 पढ़ेंगे, ओके, सेक्शन 60 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, तो उसमें ये बात कही गई है कि कलेक्टर शैल मेड द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन ऑल द लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड। ओके, एंड अब फाइनली हम 2023 दैट मीन्स लास्ट ईयर के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर में क्या चीजें शामिल होती हैं? क्या हॉर्टिकल्चर इंक्लूड हो जाएगा? क्या प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ कमर्शियल प्लांटेशन ऑर्किड्स इंक्लूड हो जाएगा? क्या रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फूडर, ग्रेजिंग और थैचिंग ग्रास इंक्लूड हो जाएगा, और या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर।
और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज बी को, ओके, विच डिफाइंस द एग्रीकल्चर। आप वो सेक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा जिसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ओके। 5 पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, वो 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following section is substituted by the Chhattisgarh Act number 6 of 2022 with effect from 4/5/2022, okay, 4th of May 2022 कौन से सेक्शन को सब्सटीट्यूट कर दिया गया था? इज इट सेक्शन यू, सेक्शन वी, सेक्शन डब्ल्यू या फिर सेक्शन एक्स? हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2U, ओके, सेक्शन 2U या 2V या सेक्शन 2W या फिर सेक्शन 2X, इनमें से कौन से सेक्शन को सब्सटीट्यूट कर दिया गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 2 के क्लॉज यू को सब्सटीट्यूट कर दिया गया था, विच टॉक्स अबाउट द रेवेन्यू ऑफिसर, ओके। रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन हमें इसमें मिलती है। एंड रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब होता है सच रेवेन्यू ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दैट प्रोविजन, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज मेंशन्ड इन। हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर एंड द ऑप्शंस आर सेक्शन 5 क्लॉज 1, सेक्शन 5 क्लॉज 2, सेक्शन 5 क्लॉज 3 या फिर नन ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू कोड है इसमें सेक्शन के क्लॉजेस भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो आपको क्लॉज वाइज याद करना पड़ेगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 5 के क्लॉज 3 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू मेंशन्ड है, ठीक है। और आप इसके क्वालिफिकेशन भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी सबॉर्डिनेट टू। सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे? क्या वो कमिश्नर के सबॉर्डिनेट होने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होने वाले हैं, एडिशनल तहसीलदार के सबॉर्डिनेट होने वाले हैं या फिर नायाब तहसीलदार के सबॉर्डिनेट होने वाले हैं? तो अगर हम बात करें रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में तो दे विल बी सबॉर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। एंड इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 12 which deals with the control over revenue officers and it says that it provides that all the revenue officers shall be subordinate to the state government and all revenue officers in divisions shall be subordinate to commissioner, okay। revenue officer in division अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा कमिश्नर के सबॉर्डिनेशन में, एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो दे विल बी सबॉर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। The next question is Section 22 of the Chhattisgarh Land Revenue Code is related to. Is it option A appointment of the superintendents of land records and assistant superintendent of land records? Option B subordinate of revenue officers. Option C subdivisional officer या फिर option D other officers. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब डिविजनल ऑफिसर्स, ओके। एंड सेक्शन 22 जो हमारा है ये डील करता है सब डिविजनल ऑफिसर्स के ही बारे में, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPC, that is Code of Civil Procedure, to apply in all the proceedings under Land Revenue Code when no express provision is made. कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है कि जहां पर भी कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया होगा तो हम सीपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करने वाले हैं? क्या ये सेक्शन 44 में बात कही गई है? क्या सेक्शन 43 में ये बात कही गई है? क्या सेक्शन 42 में ये बात कही गई है या फिर हमारे सेक्शन 41 में? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 43 ऑफ द लैंड रेवेन्यू कोड सेज दैट civil procedure code will apply in all the proceedings where no express provision is made. The next question is as per the limitations of appeals, no appeal shall lie within the land revenue code.
Option A, to the commissioner after expiration of 60 days from such date. Option B, to the Board of Revenue after expiration of 90 days from such date. 90 days, okay. Option C, both A and B are correct, या option D, none of the above. चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हुआ है, ओके, ऑल्दो हाफ ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, तब भी इसका मैं बता दूं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी 2015 का जब क्वेश्चन डिस्कस करा था तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो अपील होता है वो 60 डेज से ज्यादा या 60 डेज के बाद हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने हमें अपील डालना है तो वी हैव 90 डेज टाइम लिमिट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the term of assessment of land revenue made by the district survey officer shall ordinarily be of term of assessment of land revenue, okay, which is made by district survey officer। क्या ये 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, या फिर none of the above? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। और नन ऑफ दी अबव आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम सेक्शन 85 ऑफ दिस कोड पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही गई है कि ऑर्डिनरली 30 ईयर्स का टर्म रहता है ऑफ असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच इज मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। और इसी के साथ हमारा 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है ऑफ द छत्तीसगढ़ जुडिशरी विच इज रिगार्ड टू दी रेंट कंट्रोल, सॉरी दिस इज रिगार्ड टू दी लैंड रेवेन्यू कोड, ओके। रेंट कंट्रोल तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लैंड रेवेन्यू कोड कर रहे थे, ये भी आज कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए या फिर मेरी स्पीड ठीक है, या फिर आपको क्या चेंजेस चाहिए, क्या मैं क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आऊँ। आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जुडिशरी, आप उन्हें इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।